کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو ہی سب کا اسلام ہے, لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے, بابوں کا جہاں اور. کم ہم نے دیکھنے کو ملا ہے کہ کسی بھی آپ اجتماع میں چلے جائیں, جس کا جو مذہبی اجتماع سمجھ لیں آپ, کوئی پروگرام دیکھ رہے ہیں, وہاں پہ اکثریت جو ہوتی ہے وہ بزرگ ہوتے ہیں, نوجوانوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے. جو شیخ خطابت میں کچھ نہ کچھ ایسا ہو گیا ہو, تو میں نے دیکھا ہے کہ علی بھائی کا کہ وہ اکثر اس کو رجوع کرتے ہیں اگر کچھ ان سے جو ہے نا غلط نکل جائے. آنا سر ایسے ہوا کہ ایک عالم کو سامنے فیس ٹو فیس سننا چاہ رہا تھا, اور میں اس کو ثواب سمجھتا ہوں اس لحاظ سے کہ ایک بندہ وہ جہاد کر رہا ہے, حق بیان کر رہا ہے, اور وہ اکیلا تنہا, جیسے میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام ڈٹے تھے, حق پہ ڈٹے تھے, الحمدللہ اسی طریقے سے یہ بندہ حق پہ ڈٹا ہوا ہے. یہ گمراہ ہے, اس کے عقائد ٹھیک نہیں ہے. تو پھر میں نے دھیرے دھیرے اس کو سننا اسٹارٹ کیا. تو جب سننا اسٹارٹ کیا تو مجھے پتہ چلا کہ اصل میں ہم گمراہ تھے. مطلب جو میرا سوچ تھا نا, جو میرا خیال تھا, اس سے بھی زیادہ اس کو رسپانس ملا, اور انہوں نے کافی تفصیل سے اس کا کلیئر کر دیا, جواب دے دیا وضاحت کے ساتھ. جی لائف بالکل فرسٹ. کیسا رہا پروگرام آج کا؟ آج اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا؟ موسٹلی ہم جب انٹر ہوئے وہاں سے تو ہم نے ان کو دیکھا تو خوشی تھی بہت زیادہ, اور یقین مانے کہ ہماری ہارٹ بیٹ تیز ہو گئی تھی, ایک انتہا کی خوشی تھی. اور آلموسٹ میں نے ایک ہفتہ سنا ان کو. صحیح ہو گیا. تو پھر میں جس سے بھی بات کرتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ تم کہا کرتے تھے نا کہ تم کیا ہو, کہتے ہو میں مسلمان ہوں, تو میں نے کہا علی بھائی کو پورا سن لینا, میں یہی ہوں. کیونکہ ابو بہت زیادہ درباروں پہ لے کے جایا کرتے تھے, تو اس لحاظ سے میں کافی لوگوں کو سنا کرتا تھا. لیکن یہ کہ جب انہیں سنا تو وہ چیز ہی بالکل چینج ہوگی. پھر اس کے بعد یہ کہ کافی نظریہ بھی چینج ہو گیا, پھر ابو کو سمجھانے میں کافی وقت لگا. دیکھیں نا آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے نا. نہیں میں یہ جو باتیں کی یہ دین سے ہٹ کے تو نہیں کی, بات قرآن و سنت کے حوالے سے بات. کوئی ٹاپک ہوگا کہ اس کے اوپر ایک لیکچر ہوگا, بہت سارے اگر آپ نے ٹاپک دیکھنے ہیں تو یوٹیوب پہ جا کے لکھے نا. نہیں میں آپ سے اختلاف نہیں کر رہا, میں آپ سے کراس کوسچن نہیں کر رہا. آپ نے پوچھا کہ آپ کو کیسا لگا تو میں اپنی رائے دے رہا ہوں. جو خالق ہے وہ میرے قریب ترین ہے, تو میں اس سے دعا مانگتا ہوں, اس سے مدد مانگتا ہوں کہ مجھے بہتری کا جو راستہ ہے, جو حق ہے, وہ میرے سامنے جو ہے واضح ہو جائے. سٹارٹ میں تو نیگیٹو ہی تھا. اچھا. لیکن جب ان کے بارے میں سنا ہے تو ہم نے سوچا یہ نیگیٹو ہے, اس میں کچھ نہ کچھ ہے. تو ہم نے باقی ان کی تفصیلاً جتنی ویڈیوز تھی وہ دیکھی ہیں, تب ہمیں پتہ چلا کہ نیگیٹو نہیں کیوں کہتے ہیں, کیونکہ باقی نیگیٹو ہیں, اس لیے پازیٹیو کو نیگیٹو ہی کہتے ہیں. یہ برج ٹوٹے اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تائید تھی, پیچھے سچائی پہ بات ہو رہی تھی. اللہ اپنے منتخب بندوں کو ہر دور میں چنتا ہے. انجینئر صاحب ہی از ون آف دیم. الحمدللہ اللہ نے پہلے نالج دیا تھا, اس طرح کی باتیں ہم کرنا چاہتے تھے, کر نہیں پاتے تھے, بٹ علی بھائی کو دیکھ ہوا کہ چلو یار کوئی بندہ تو ادھر ہے. یہ تو بڑا مشکل ٹائم تھا, تقریباً سمجھ لیں 3-4 سال ابو کو سمجھانے میں ہی لگ گئے. پھر جب انہیں اکثر میں موبائل دیکھا کرتا تھا, ساتھ بٹھا لیتا تھا, تو ٹک ٹاک پہ آگے پیچھے کی آپ کو پتہ ہے ویڈیوز کتنی چلتی ہیں, تو پھر یہ آتی تھی سامنے, پھر ابو بھی دیکھتے تھے, کہتے تھے یار بات تو صحیح ہے, بات تو صحیح ہے. ہم نے اپنے علماء سے بھی پوچھا کہ یہ بات کیسے ہے. جب وہ جواب نہیں دے پائے تو ہم نے ایکسیپٹ کیا کہ یہ بات درست فرما رہے ہیں, ان کی بات میں صداقت ہے. ایک دو نا گلے ہے مجھے محلے والوں سے, تسی مبی ہو گئے ہو. اچھا. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ اس طرح تیرا بھائی نماز پڑھتا ہے. میں گھر آیا, امی ابو کو کہا, میں نے کہا یہ اس طرح انہوں آنکھوں یہ چھڑے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے محمد فرحان قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جہلم اکیڈمی فرحان قریشی. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں حال میں اب سیشن چونکہ ختم ہوا جاتا ہے, حال میں آئے ہوئے لوگوں سے کچھ بات کرتے ہیں, تو آئیے شروع کرتے ہیں. السلام علیکم بھیا. وعلیکم السلام جی. کدھر سے آئے؟ کوٹلی آزاد کشمیر سے. کوٹلی آزاد کشمیر. جی. کتنے لوگ آئے ہیں؟ ہم 2 لوگ ہیں.
दो दो लोग। लोग जी जी। अच्छा, फर्स्ट टाइम आए? फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम। अच्छा, इनका तारुफ आपको कैसे हुआ इंजीनियर साहब का? बेसिकली इंजीनियर साहब का तरफ हमें सोशल मीडिया के ज़रिए हुआ। नेगेटिव था, पॉजिटिव था? नहीं, हम बेसिकली यही स्कूल ऑफ थॉट था, क्योंकि वालिद साहब जमात इस्लामी से तल्लुक़ रखते थे माशाल्लाह। तो हमने सुनना शुरू किया और समझना भी शुरू किया कि ये वही बातें हैं जो जमात इस्लामी के स्कूल ऑफ थॉट में से हैं। तो तकरीबन मिलता जुलता था, तो इस वाले से हमने देखा। और ये इंजीनियर साहब ने बेसिकली एक स्ट्रेट तरीके से लोगों को आसान तरीके से समझाना शुरू किया, जिस वजह से बहुत से नौजवान, आप ये यहाँ पे भी देख लें, हमने भी अंदाज़ा किया है कि यहाँ पे मैक्सिममली नौजवान जो स्टूडेंट्स समझ लें या नौजवान 30 साल तक के नौजवान मौजूद हैं। हालांकि ऐसा बहुत कम हमने देखने को मिला है कि किसी भी आप इज्तिमा में चले जाएँ, जिसका जो मजहबी इज्तिमा समझ लें, आप कोई प्रोग्राम देख लें, वहाँ पे अक्सरियत जो होती है वो बुजुर्ग होते हैं, नौजवानों की तादाद बहुत कम होती है। ये पेंट शर्ट वाले नौजवान दीन की महफिल में बहुत कम नज़र आते हैं, और हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ही नज़र आए। ठीक है जी जी, ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस हवाले से हम और भी नौजवानों को ये दावत देते हैं कि जनाब आएँ, आप यहाँ से कुछ ना कुछ आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा। और आप खुद भी स्टडी करें, और जो आप बात इंजीनियर साहब कहते हैं, जो वो बयान करते हैं, आप उसको तलाश करें कि क्या ये वाकई मौजूद है। अगर ये आपको तसल्ली हो जाती है तो आप इसको कंटिन्यू करें, जारी रखें और सुनते रहें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाईजान? मेरा नाम साकिब अली। साकिब अली भाई जी। आपका क्या नाम है? अब्दुल मोइस। क्या? अब्दुल मोइस। अब्दुल मोइस। साकिब भाई किधर से हैं? मैं टोरंटो कनाडा से। पाकिस्तान से किधर से हैं? पाकिस्तान में कामोकी से। कामोकी से। खैरियत थी, कैसे आना हुआ? हाँ, एक दोस्त की तमादारी के लिए आया हूँ। अच्छा जी। इधर जेल में? नहीं, वो खैर वो इधर लाहौर में एडमिट। जेल में कैसे आना हुआ? जेल में अली भाई का दर्स के लिए सुनते हैं, इनका वीडियो पहले भी देखते हैं। अच्छा। तो हमने कहा कि ये बच्चा मेरा भी सुनता रहता है। अच्छा। तो कहता था कि हमें इंजीनियर साहब को सुनना है, तो मैं क्या चलो आज चलते हैं, जाके सुनते हैं। तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हम तो पहले भी मतलब कहते हैं कि जो हक की बात है ना, वो कोई भी हो उसे सुनना चाहिए। सही है, ठीक है ना। जो गलत बात करता है वो आजकल की दुनिया में ये एक सेल फोन के ऊपर आपको हर एक चीज़ जो है ना वो सर्च करके मिल जाती है कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। हो सकता है कुछ जो है ना वो जो शेख खिताबत में कुछ ना कुछ ऐसा हो गया हो, तो मैंने देखा है कि अली भाई का कि वो अक्सर उसको रजू करते हैं अगर कुछ उनसे जो है ना गलत निकल जाए। क्योंकि हम मतलब उधर टोरंटो कनाडा में भी हम हमारी लाइक पॉलिटिकल और मजहबी जो है ना वो डिबेट छोटी मोटी होती रहती है लोगों के साथ, ठीक है ना। बट उधर यह है कि लोग पॉजिटिव व्यू से देखते हैं। तो कुछ लोग मतलब वो कहते हैं कि मतलब ये चीज़ गलत है। हम पहले से ये बात कहते हैं कि नहीं यार, जो गलत है ना उसको देखें, वो उन तक पहुँचाएं कि नहीं ये चीज़ देखिए, इस पे अपना रजू रिकॉर्ड कराएं, जिसका जवाब 10 रजू रिकॉर्ड करवाएं। जी जी जी, वो मैंने देखा मैंने। तो मेरा अपना बैकग्राउंड जो है ना वो पाकिस्तान में जब थे, मेरे घर का माहौल जो है ना वो अहले हदीस अहले सुन्नत का था। मेरे दोस्त बाप ज़्यादा अहले तशय्युद थे, तो अहले बैत का तारुफ हमारे उससे था। तौहीद का घर से जो है ना वो दर्स मिला हुआ है। तो जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने पहले नॉलेज दिया था। इस तरह की बातें हम करना चाहते थे, कर नहीं पाते थे। बट अली भाई को देख हुआ कि चलो यार कोई बंदा तो इधर है जो कि हक सच की बात करने वाला है, गलत को गलत और सही को सही कहने वाला है। तो इस तरह की अल्लाह ताला इनके जो स्टूडेंट हैं आगे वो भी इस तरह का काम करें, जो दर्स को आगे लेके जाएं, कुरान हदीस की बातें बताएं, बुजुर्गों का एहतराम करें। उनको हम बुरा नहीं कहते, अली भाई भी नहीं कहते हैं, एहतराम करें। ये बात है वो डिबेटेबल है, ठीक है ना। जो गलत है ना उसको कहे कि हाँ ये जो है ना डिबेटेबल चीज़ है, इसको हम जो है ना साइड पे रखते हैं। कुरान हदीस की बात करें, अहले बैत की बात करें, सहाबा की बात करें, सबको जो है ना वो अच्छे अल्फाज में याद करें और भाईचारे के साथ चले। अच्छा ठीक है। आप कैसे आए हो बच्चे? हाँ, मैं अपने पापा के साथ। पापा लेके आए हैं या खुद भी शौक था खुद भी इंजीनियर शौक साहब को था? सुनने का? इंजीनियर साहब से लास्ट रमज़ान हम आए थे, तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैं नहीं आ पाया। बट अब अल्लाह का शुक्र मैं इनको मिला, मुझे बड़ी खुशी हुई। देखे इनको? नहीं, अभी पिक्चर लेनी है, बड़ी वैसे देख लिया? हाँ जी। कोई नारा आता है इनका? हाँ? कोई नारा मार के दिखाओ ना। इंजीनियर साहब क्या नारा मारते हैं? तेरी बाबी शायरी कोई नहीं। तेरी बाबी दे। चलो जी, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हाँ जी, और कौन है? आजा आजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भैया? आगा सज्जाद, कराची से आया हूँ। माशाल्लाह, वो तो आपका एक्शन बता रहा था। माशाल्लाह, कराची से है। जी। खैरियत थी? कितने लोग आए हैं? नहीं, मैं अकेला ही आया हूँ, साथ में एक साथी और भी है, मैंने देखा है। हाँ नहीं, एक साथी साथ है, वो जस्ट इसलिए कि ड्राइविंग साथ की है उसने। अच्छा अच्छा। तो
बेसिकली तो मेरी ख्वाहिश थी आने की। ठीक हो गया, कैसे आना हुआ? आना सर ऐसे हुआ कि एक आलिम को सामने फेस टू फेस सुनना चाह रहा था और मैं इसको सवाब समझता हूँ। और मैं कोई मैट्रिक किया था तो तब सवालात थे हक की तरफ जाने के लिए। और मैं अहले तशी फ़िरके में पैदा हुआ, वालिद की तरफ अहले तशी, वालदा से अहले सुन्नत था। लेकिन बुक्स पढ़ी, किताबें पढ़ी तो मुझे ये एहसास हुआ कि मुख्तलिफ़ अलग अलग किस्म की बातें हैं लेकिन कोई ऑथेंटिक चीज़ नहीं मिलती थी। तो मैं बहुत ज़्यादा स्कैटर माइंड था, यानी मुंतशिर दिमाग रहता था। मैंने रिसर्च की, मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों पर की और तकरीबन ऐसी ही स्टोरी है, बहुत लंबी स्टोरी है लेकिन टाइम कम है। तो मैंने मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों में गया, उनकी मसाजिद में उनके दर्स, उनके बयानात सुनता था और फिर आहिस्ता 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 बेहतरी की तरफ आया। और इतना कंफ्यूज था कि मैंने कहा कि जो खालिक है मेरी इस हस्ती का, अब चाहे वो उसका नाम अल्लाह है, सही है, गॉड है, ईश्वर है, कुछ भी है, जो खालिक है वो मेरे करीब तरीन है। तो मैं उससे दुआ मांगता हूँ, उससे मदद मांगता हूँ कि मुझे बेहतरी का जो रास्ता है, जो हक है, वो मेरे सामने जो है वाज़े हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई मैट्रिक या FA वगैरह का दौर था तो चीज़ें सामने आती चली गई, खुद बखुद ही आती चली गई। अच्छा, वक्त के साथ साथ चेंजिंग आई, अल्हम्दुलिल्लाह अपने रब और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होते गए और तमाम फ़िरके छोड़ दिए। मुझे ऑलमोस्ट 25 साल हो गए हैं, मेरी ज़ुबान से फ़िरके का नाम नहीं होता। मुझसे कोई पूछता है तो मैंने कहा यार तो मुसलमान हूँ, इसके अलावा तो मैं कुछ नहीं जानता। अच्छा, जो अश्कार हुई आपके सामने चीज़ें वो कैसे हुई? स्टडी की आपने, क्या हुआ? मैंने स्टडी की थी। हाँ, अच्छा, स्टडी के अलावा तो किताबों में ना जी स्टडी की, मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों के उलमा से मिला, उनसे क्वेश्चन करता था, उनके बयान ख़त्म होते थे तो उनसे क्वेश्चन करता था। बिल्कुल सही है। फिर एक वक्त आया तो कुरान का तर्जुमा स्टार्ट किया। मुझे कोई ऑलमोस्ट 18 या 20 साल हो गए, मैंने अरबिक में कुरान नहीं पढ़ा। मैं उर्दू लैंग्वेज जो मेरी नेटिव लैंग्वेज है उसमें पढ़ता हूँ। दुआ करता हूँ कि कभी अरबिक सीखूँगा तो ठीक है, वो और बेहतर होगा। जब तक नहीं सीखता तो मैं उर्दू में ही उसको पढ़ता हूँ। तो अल्लाह पाक ने हिदायत दी। अच्छा, मैंने ये देखा है कि जैसे है ना कि हुदन लिल मुत्तकीन, हिदायत है मुत्तकीन की। तो पहली शर्त ये थी, मुझे समझ आ गई कि पहले तकवा इख्तियार करो, हिदायत अल्लाह ताला देगा। तो कोशिश यही रही कि परहेज़गारी इख्तियार करें और रब ने आंखें खोली। अभी जो मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के बारे में जो बात करना चाहूँगा वो ये है सर कि ये ख्वाहिश भी 20-22 साल से रही कि जो दौर चल रहा है और जिस तरह शिर्क आम है तो कोई मोमिन आलिम जो मिलावट वाला ना हो, ठीक है, खालिस बात करें, मफाद ना हो, किसी एक फ़िरके से ताल्लुक़ ना हो, अल्लाह रसूल की बात करें। तो मैं कुछ दोस्तों के साथ ये अक्सर कहा करता था कि काश मौका मिले। और जब ये नया दौर आया, डिजिटल दौर आ गया, यूट्यूब वगैरह आया, तो मैंने कहा यार हमें करना था ये, हम क्यों नहीं कर सके, लेकिन काम काज मसरूफियत की वजह से नहीं कर सके ना। सही है। अच्छा, तो जब अली भाई को सुना, तारुफ कैसे हुआ? तारुफ जस्ट ऐसे ही वीडियो सामने गुजरी, कोई शॉर्ट्स वगैरह आ गए, कुछ सही हो गया, कायदे नज़रिया तो आपके पहले क्लियर थे, वो क्लियर थे, ठीक हो गया। तो जब मैंने सुने और ऑलमोस्ट मैंने कोई 1 हफ्ता सुना इनको, सही हो गया। तो फिर मैं जिससे भी बात करता था और ये कहता था कि तुम कहा करते थे ना कि तुम क्या हो, कहते हो मैं मुसलमान हूँ, तो मैंने कहा अली भाई को पूरा सुन लेना, मैं यही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऑलरेडी था। माशाअल्लाह। मज़ा ये आया कि जो चीज़ हम चाहते थे, जो मैं चाहता था, वो अली भाई ने सेम वही चीज़ें की, और खुल के मोमिन बनकर और उन्होंने जहाद किया। नाम मैं अपनी ज़बान में तो इनको दबंग भी कहता हूँ। अली भाई आज फर्स्ट टाइम आए? फर्स्ट टाइम आया। प्रोग्राम सारा देखा? कैसा लगा? नहीं, मुझे तो 2 घंटे में आना था यहाँ पर। मैं वहाँ से निकला हूँ गुजरांवाला से, मोटरसाइकिल पर आया हूँ, लेकिन बारिश की वजह से मुश्किलात सहता हुआ 5 घंटे में लगे, 11:30 बजे। कैसा था आज का प्रोग्राम जो देखा? प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा था, ईच एंड एवरीथिंग वाज गुड, मुझे मज़ा आया। और कुछ चीज़ें थी जिन पर मुझे क्वेश्चंस करने थे। आखिर में अली भाई ने जैसे बताया कि जी टाइम ये, तो फिर मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं लिखने। हाँ ठीक है, चले बाकी सर आए
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भैया? जी अहमद मेरा नाम है। अहमद भाई किधर से है? गुजरावाला से है। गुजरावाला बड़ा जरखेज हो गया माशाल्लाह। माशाल्लाह बहुत स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज़्यादा इश्तियाक था इनसे मिलने का, बहुत ज़्यादा शौक़ था, बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। और इस लिहाज से कि एक बंदा वो जहाद कर रहा है, हक बयान कर रहा है, और वो अकेला तन्हा, जैसे मैदान करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम डटे थे, हक पे डटे थे, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से ये बंदा हक पे डटा हुआ है। ठीक है, अल्लाह ताला इनको सेहत वाली, तंदुरुस्ती वाली और मज़ीद इनको कामयाबी और तरक्की अता खाली हक पे ही डटा हुआ, मंजी भी ठोक दी। पूरी बात करे ना, फिर तो की मंजी ठोकी कि नहीं? ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। हमारा दिल बहुत ज़्यादा खुश है, हमें बहुत ज़्यादा इनसे मोहब्बत है, मिलने का शौक़ था, अल्लाह ताला ने वो भी पूरा कर दिया है। कब से सुन रहे हैं? तकरीबन 6-7 साल से। कैसे तारुफ हुआ था? नेगेटिव था पॉजिटिव था? नेट पे हुआ। अब वो ना क्लिप नेगेटिव था या पॉजिटिव था? नहीं, पहले तो जब समझ नहीं थी तब नेगेटिव था। अच्छा। तब उसकी रिसर्च की है कि ये बात में सदाकत कितनी है, सच्चाई कितनी है, हकीकत कितनी है। हमने अपने उलमा से भी पूछा कि ये बात कैसे है। जब वो जवाब नहीं दे पाए तो हमने एक्सेप्ट किया कि ये बात दुरुस्त फरमा रहे हैं, इनकी बात में सदाकत है। एक बंदा मिंबर रसूल पे बैठ के कह रहा है जी ऐसे है, ऐसे है, ना तो वो किताब दिखा रहा है, ना वो सियासत की कोई किताब दिखाता है, ना कोई रेफरेंस दे रहा है, ना कुछ भी नहीं बता रहा, बस बता रहा है ऐसे ऐसे। एक बंदा रेफरेंस दे रहा है, एक बंदा किताब दिखा रहा है, एक बंदा हर चीज़ दिखा के हमें बयां करके सच बता रहा है कि अल्लाह ताला की वहदनीयत है, एक है, अल्लाह की इबादत करनी है, ये मेथड है, ये तरीकाकार है। हम उनकी मानेंगे कि दूसरे मौलवी की माना है। यही तो, इसलिए तो वो लाजवाब हो चुके हैं और कहते हैं सुनना नहीं है। और आखिर पे जब उनका बस नहीं चलता तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं नहीं जी उसको सुनना नहीं है, सुनना ही नहीं है, नहीं जी उसको छोड़ दे, वो गुमराह हो जाएंगे। क्यों? अच्छा, आज फर्स्ट टाइम आया तो कैसा रहा प्रोग्राम जो आज आपने देखा? बहुत खुशी। वीडियोस में देखने में और लाइव देखने में फर्क है? अच्छा ठीक है, चले, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हाँ जी, और कौन है? वालेकुम सलाम, क्या हाल है भैया? ठीक है, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आगे थोड़ा सा। ये क्या है आपको, क्या हुआ है? ये रास्ते में आ रहे थे तो एक्सीडेंट हो गया हमारा। अच्छा, आज ये भी? हाँ अभी। अल्लाह अकबर। कैसे, बाइक से गिर गए? हाँ जी, बाइक से। चले, अल्लाह ताला आपको तकलीफ दूर फरमाए। अच्छा, कैसे आना हुआ? बस सॉरी, पहले अपना नाम तो बताएं। मेरा नाम हज़रत वली है। हज़रत वली भाई। मेरा ताल्लुक अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से? और पाकिस्तान से? पाकिस्तान से इधर पिंडी में। पिंडी में रह रहे हैं जी, ठीक हो गया। उर्दू कैसे आई? उर्दू बस इधर ही सीखी। कब से इधर? बचपन से सीखी, क्योंकि मेरी पैदाइश इधर ही हुई है। अच्छा, पैदाइश इधर ही हुई है। जी जी। तो फिर पाकिस्तान के हो ना यार आप? पाकिस्तान की। आप पाकिस्तान की नेशनलिटी नहीं है सिर्फ, बस वो खैर, ये तो आप पैदाइश इधर के हैं। जी जी। अच्छा, आप चूँकि रिहाइश पिंडी की है? जी जी। पहले कौन सा था मकतबा फ़िक्र, फिरका क्या था? देवबंद था? पहले मैं देवबंदी था। तारुफ कैसे हुआ इंजीनियर का? नेगेटिव भी हुआ था। क्या सुना था? कह रहा कि इसको नहीं सुनना है, कादियानी है। मैंने एक क्लिप लगाया था, दो दोस्त ने कहा था कि कादियानी है, इसको नहीं सुनना है, ये गुमराह है, इसकी अकायद ठीक नहीं है। तो फिर मैंने धीरे धीरे इसको सुनना स्टार्ट किया। तो जब सुनना स्टार्ट किया तो मुझे पता लग चला कि असल में हम गुमराह थे। असल में हम गुमराह थे, ज़बरदस्त। तो फिर हकीकत खुल गई। तो फिर इनसे इतनी वो मोहब्बत हो गई, मैंने बोला कि ज़िंदगी में एक बार तो इनसे मिलना है। माशाअल्लाह। वो सामने बेसिकली देख रहे हैं उनके साथ। आज फर्स्ट टाइम आए? हाँ, फर्स्ट टाइम आया। आज आपने देख लिया, अभी जाएंगे इंशाल्लाह, अंदर पिक्चर भी होगी, तस्वीर भी होगी। मैं कह रहा हूँ फिर से जाऊँ, फिर से दूसरा फेरा नहीं लगता। नहीं लगता, उन्होंने बता दिया कि एक ही बार होगा। सही हो गया। चले, अल्लाह ताला की मोहब्बत की वजह से आप इधर आए हैं। इंजीनियर साहब से जो मोहब्बत करता है वो अल्लाह की मोहब्बत के लिए। अल्लाह ताला आपका आना कबूल करे। आमीन। और ये बताएं कि अब दावत का सिलसिला जारी है, घर वगैरह अपने रिश्तेदारों में? जारी है, थोड़ा मुश्किल है। अफगानिस्तान में तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान में यहाँ पे जहाँ पे रह रहे हैं। हाँ, यहाँ पे भी जारी है। मैं असल में बेसिकली रेस्टोरेंट में काम करता हूँ, तो ये भाई भी मेरे साथ है। इसको पहले मैं कहता था तो ये भी बेवकूफ़ होता था, मुझे कहता था कि नहीं ये गुमराह है, इसको नहीं सुनना है, हमारे फिर बाबे जो है वो गलत है, ये इंजीनियर ठीक हो। अच्छा, भाई कहते थे? मैंने बोला इंजीनियर ठीक नहीं है, उसकी बात सुनो, अगर वो गलत होगी तो आप मुझे बता देना कि गलत है। अच्छा, कुरान सुन्नत उसमें रेफरेंस नहीं हुए तो बता देना। अच्छा। तो फिर इस भाई को भी मैंने वो किया कि आप मेरे साथ चले जाए, एक बार खुद देख ले, अगर आप कोई वो सवाल हो तो वो आप कर ले। तो भाई ने सवाल किया, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मुतमईन है। अच्छा, सामने आगे आइए भैया। क्या नाम है? अख्तर मुनीर मेरा नाम है जी। अच्छा। रावलपिंडी साहिब एरिया टाउन में रेस्टोरेंट में काम करते हैं। ठीक, दोनों दोस्त थे, तो काफ़ी दिनों से, काफ़ी अरसे से हम ये प्रोग्राम बना रहे थे। तो आज बारिश भी थी, हमको मौसम की संगीनी का पता भी था, लेकिन फिर भी हमने अल्लाह पे तवक्कुल करके निकल पड़े, अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए। बहुत अच्छा लगा, मुतमईन हो गए।
मसल्ला एक ही मुलाकात में मुतमिन हो गए या जी सर। पहले ही नहीं जी, काफी पहला- सारे मसले क्लियर थे? नहीं जी, जैसे वो मैंने- बता रहे हैं कि तो इतराज करते जी थे। उनके तो क्लियर थे, लेकिन ज़ाहिर है मैं ज़्यादा वीडियो वगैरह नहीं देखता। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको मुझे इनका जानकारी तारुफ नहीं थी। क्या था? बस यही था कि सिर्फ इनसे नाम सुना था सर। नहीं, इनका तारुफ इंजीनियर साहब का इससे पहले, आने से पहले आपके माइंड में क्या था कि ये क्या बंदा है, ये क्या करता है? सर ज़ाहिर है नेगेटिव ही था। नेगेटिव था जी, ये किस जी। सेंस में था? मतलब आप इसको क्या समझते थे? सर जी यही ना कि मतलब हमारा ये झूठ जो- बोलता है या कादियानी है? नहीं क्या नहीं नहीं समझते नहीं नहीं ये इतना नहीं था, लेकिन ये था कि जो आम तौर पे जो वीडियो कभी कभार मिल जाती है किसी और के, तो फिर वो कहते हैं कि ये नहीं है, वो नहीं करता, ये तकलीद का मसला जो होता है, ये जो आइमाए है चार सही है। आमिरा में, उनकी वजह से जो है ना फिर हमारा इधर मतलब वो माइंड नहीं था। हैं? अच्छा, आके क्या क्लियर हुआ? तो क्या अभी देखा? ये क्लियर हो गया जो हजरत साहब ने जो बातें की, जो ये सवाल खुद जो लिए हुए हैं इन्होंने, जी, ये जी। ये जो लोग बैठे हुए थे ये इसके अपने तो नहीं थे? नहीं 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 मैंने खुद अपना सवाल लेके मैंने दिया, तो वो भी उसने- वो भी हो गया? जी जी। नहीं, जो उलमा तो कहते हैं बंदे भी नहीं अपने नहीं होते हैं, सवाल भी अपने होते तकरीबन हैं। मेरे सवाल पे तकरीबन 5 से 7 मिनट बात की। अच्छा अच्छा, नहीं, वैसे मैंने उलमा खुद से इल्ज़ाम लिखा। लगाते हैं, वो नहीं कहते नहीं हैं नहीं ये बिल्कुल गलत है इल्ज़ाम जो भी गलत लगाते हैं। जी मैंने खुद लिखी, अपने हाथ से लिखी, वो पढ़ उनमें ली किसी ने कोई मतलब ये कि कटिंग वगैरह कुछ नहीं की। और जो सवाल का जवाब दिया उससे भी सेटिस्फाइड उससे हुए? मैं 100% मुतमईन हो गया। मुतमिन हो गए। जी जी मतलब मेरे जो मेरा सोच था ना, जो मेरा ख्याल था, उससे भी ज़्यादा उसको रिस्पांस मिला, और उन्होंने काफ़ी तफसील से उसका क्लियर कर दिया, जवाब दे दिया वजाहत के साथ। सही हो तो गया। ज़ाहिर है मुतमईन होना तो फिर आइंदा पड़ता है। आइंदा इनको सुनना है? बहुत सुनना है सर इंशाल्लाह। चल, जज़ाकल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है भजन? सबसे पहले तो जी जी बिस्मिल्लाह। आपको सलाम अर्ज़ करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। मेरा ताल्लुक सूबा सिंध से है। माशाल्लाह। सक्कर से में ताल्लुक है। ज़बरदस्त। नदीम भुट्टो मेरा नाम। नदीम भुट्टो? भुट्टो भुट्टो, अच्छा अच्छा अच्छा, भुट्टो फैमिली। जी ठीक हो गया। तो गुजारिश है जी कि आपने जिस तरह पिछले दोस्त को कहा कि यहाँ आने का जो मकसद है, ये दावत और तबलीग का जो इंजीनियर साहब काम कर रहे हैं, जज़ाकल्लाह, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे। ये उनकी दावत की बरकत है कि मुल्क के तूल और से लोग यहाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ ला रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये खाकसार भी सूबा सिंध से माशाल्लाह। यही मोहब्बत हमें खींच के लाई है। ज़बरदस्त। तो चंद मुख्तसर लफ्ज़, क्योंकि और बहुत से दोस्त भी हैं। जी जी, आप तो- बात कर सकते हैं। तो अल्लाह ने उन्हें ये हिम्मत और तौफीक दी है कि लोगों को बरसा बरस की गुमराही से निकाला है उन्होंने। बेशक। और अल्लाह ने इस तबलीग की बरकत की वजह से लोगों को नई रोशनी दी है कि अल्हम्दुलिल्लाह। वो लोग कुरान और सुन्नत की रोशनी में दीन हक की तबलीग कर सकें और इस काम में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का हाथ बटा सकें। जी बेशक। अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे। बेशक। हम सब दोस्तों की दुआ है कि वो अपने हिफ्ज़ मान में रखे और इस तरह वो अपना काम जारी रख आमीन, सके। आमीन। जो भी वर्षों की गुमराही थी उससे लोग निकल आए, कुरान और सुन्नत की पे अमल पैरा हों और अल्लाह की वहदानियत का पैगाम मुल्क के कोने कोने में तूल तक पहुँचाए। सच्चाई की दावत में अल्लाह ताला की ताईद भी होती है ना। तो अल्लाह की ताईद के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। ये कैसे, ये बरसों के जो है ये फिरके जो थे ये कैसे गिर सकते थे? बिल्कुल। ये बुर्ज टूटे इसलिए है कि अल्लाह ताला की ताईद के पीछे सच्चाई पे बात हो रही थी। अल्लाह अपने मुंतखब बंदों को हर दौर में चुनता है। इंजीनियर साहब ही इज़ वन ऑफ देम। तो हम ये दुआई कर सकते हैं अल्लाह उनकी हर लिहाज से रहनुमाई और हिफाजत फरमाए, ताकि बरसा बरस तक लोग फैज़याब होते रहें और इस काम को आगे जारी रख सकें। आपको तारुफ कब हुआ इंजीनियर साहब का, कैसे, किस दौर में? सोशल मीडिया के थ्रू। अच्छा। चंद साल से स्टार्ट में नेगेटिव था, पॉजिटिव था, क्या था? पॉजिटिव था। अच्छा, आपको स्टार्ट में पॉजिटिव रहा? क्योंकि ये आई एम ऑल्सो एन इंजीनियर। माशाल्लाह। तो ज़ाहिर तालीम याफ्ता जो लोग हैं वो कम से कम उनको थोड़ा आपके कायदो नज़रियात क्लियर थे? बिल्कुल क्लियर थे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो जैसे ही इंजीनियर साहब की वीडियोस या उनके पैगाम तालीम पहुंचती रही तो और फिक्र और जहन के जाविये खुलते गए। जी जी, और लोगों को प्लेटफॉर्म भी चाहिए था ना, अल्लाह ने हक से जहाँ पे इकट्ठे हो सके। अल्लाह ने हक से रोशनास कराया। हम खुश नसीब हैं कि हमने अपने दौर में इन जैसी इल्मी शख्सियत देखी है और उनसे बहरामंद हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे ही अल्लाह उनको तकवीत दे। हम उनके लिए दुआ करें सब दोस्त। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वालेकुम अस्सलाम। आ गया, क्या नाम है बच्चा? मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान, किधर से आए हो? रावलपिंडी से। ये रावलपिंडी? जी, चकलाला से। जी अकेले? जी। कब निकले? मैं तकरीबन सुबह 7:30 बजे निकला था। अच्छा, घर वालों ने इजाज़त दी कि छुप के आए हो? जी जी, इजाज़त दी। पूछ के आए हो? जी। अच्छा, क्यों आए हो, खैरियत थी? जी, क्योंकि मैं जब छोटा सा था तकरीबन 16-17 साल का था। अभी तकरीबन 21-22 साल का हो गया हूँ।
تب سے انہیں سن رہا تھا. اور یہ ہے کہ پھر والد صاحب کو بتایا ان کا, تو وہ تو مانے نہیں. پھر امی نے سمجھایا انہیں, امی کو بتایا, آپ ہی کو بتایا. پھر سب گھر والے جب یہ کہ الحمدللہ صرف مسلمان ہو گئے, پھر ابو بھی تو یہ کہ نیچے آ گئے. پھر ابو نے کہا چلو یار آج چھٹی تھی مجھے کام سے, تو کہتے ہیں آج جاؤ ضرور ہو کے آؤ یہاں سے. پھر ابو نے بھیجا, جی خود نہیں آئے؟ نہیں, ابو نے بھیجا تھا, خود بھی دل تھا آنے کا, لیکن ابو کی اجازت سے آنا تھا. تو وہ کل رات کو ایگری ہو گیا تو انہوں نے بھیجا ہے آج, کہتے ہیں ہو گیا. اچھا, کب سے سن رہے ہو تم؟ تقریباً 16 سال کا تھا میں تب سے سن رہا ہوں جان صاحب. دین کا شوق تھا؟ جی ماشاءاللہ. کیونکہ ابو بہت زیادہ درباروں پہ لے کے جایا کرتے تھے, تو اس لحاظ سے میں کافی لوگوں کو سنا کرتا تھا. لیکن یہ کہ جب انہیں سنا تو وہ چیز ہی بالکل چینج ہوگی. پھر اس کے بعد یہ کہ کافی نظریہ بھی چینج ہو گیا. پھر ابو کو سمجھانے میں کافی وقت لگا. پھر آج ابو کی رضا سے پھر ادھر پہنچے, ابو نے راضی کیا تو پھر ادھر آئے ہوں. نہیں تو ابو نے کہا نہیں کہ دربار چھوڑنے پڑیں گے؟ یہ تو بڑا مشکل ٹائم تھا, تقریباً سمجھ لیں 3-4 سال ابو کو سمجھانے میں ہی لگ گئے. پھر جب انہیں اکثر میں موبائل دیکھا کرتا تھا, ساتھ بٹھا لیتا تھا, تو ٹک ٹاک پہ آگے پیچھے کی آپ کو پتہ ہے ویڈیوز کتنی چلتی ہیں, تو پھر یہ آتی تھی سامنے. پھر ابو بھی دیکھتے تھے, کہتے تھے یار بات تو صحیح ہے, بات تو صحیح ہے, بات غلط ہے. پھر ابو بھی یہ کہ الحمدللہ ریولٹ ہو گئے, صرف مسلمان اب. پہلے یہ کہ بریلوی تھے ہم, پھر الحمدللہ پورے گھر والے مسلمان ہیں, صرف مسلمان. اچھا, جب پورے گھر والے مسلمان ہو گئے تو پھر باقی فیملی کا رویہ کیسا رہا؟ اب تو سب یہ کہ کافی عجیب طریقے سے دیکھتے ہیں, کیونکہ نماز بھی اب سب کی الحمدللہ سنت کے مطابق ہے. اور اس کے بعد میرے اکثر بھائی ہیں, وہ یہ ہے کہ کافی زیادہ متاثر ہیں بریلویوں سے. وہ اکثر ان کے اسٹیٹس لگاتے ہیں, جب میں لگاتا تو مجھے کمنٹ بھی کرتے ہیں. تو بڑا عجیب سا ایک ماحول بنا ہوا. بس اللہ خیر کرے, اللہ کامیابیاں دے. لگے ہوئے ہیں ہم تو کوشش میں, اللہ کرے گا انشاءاللہ. سب ایک ٹائم آئے گا کہ ہو جائیں گے اس طرح. چل, کیسا تھا آج پروگرام؟ بہت زبردست, مزہ آیا, بہت مزہ آیا. ابو کو جا کے بتاؤ گے انشاءاللہ, اگلی دفعہ لے کے آنا. جی انشاءاللہ. جزاک اللہ. وعلیکم السلام, کیا نام ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. کیا نام ہے بھجن؟ سلمان. سلمان. جی جی. سلیمان یا سلمان؟ سلمان. سلمان. سلمان بھائی کدھر سے ہیں؟ میں ویسے تو آئرلینڈ میں ہوتا ہوں, لیکن یہاں اسلام آباد میں آیا تھا چھٹیوں میں, تو اس لیے آیا ہوں یہاں پہ. اچھا, جی جی. کیسے آنا ہوا؟ دوست کے ساتھ پروگرام بنا تھا, تو بس کافی عرصے سے میرا ارادہ تھا. میں نے کہا جب چھٹیوں پہ جاؤں گا تو انشاءاللہ ملاقات ہو جائے گی انجینئر صاحب سے. ہاں جی. کب تعارف ہوا انجینئر صاحب کا, اور تعارف کیسا تھا؟ نیگیٹو تھا, پازیٹیو تھا, کیا تھا؟ بہت عرصہ پہلے جب ابو کے پاس نیا موبائل آیا تو وہ ایسے یوٹیوب وغیرہ دیکھتے تھے. اس کے اوپر انجینئر صاحب کے پرانے بچپن جو ینگ ایج والی ویڈیوز تھی وہ آتی تھی, تو مجھے کوئی خاص اچھا نہیں لگتا تھی. اس وقت یہ شیئر پڑھتے ہوتے تھے, میں ہوں مسلم علمی کتابی. صحیح ہے. تو میں کہتا تھا یار یہ ابو کیا سنتے رہتے ہیں. ابو سنتے تھے؟ ہاں, میں تو سنتا ہی نہیں تھا. ابو کے پاس موبائل تھا تو وہ ایسے اسکرول کرتے تھے, انہیں نیا نیا چیزوں کا شوق تھا تو وہ دیکھتے تھے. یہ شروع کا تعارف تھا. پھر بس ایسے ہی تھوڑا تھوڑا سننا شروع کیا. پھر میں باہر ہوتا تھا تو کبھی ٹائم فری ہوتا تو شارٹس وغیرہ دیکھتے تھے ادھر. نہیں, اس وقت تک آپ کا جو اسکول آف تھاٹ تھا یا جو مکتبہ فکر تھا وہ کیا تھا؟ مکتبہ فکر ویسے تو ہم نے کبھی ایسے اوپنلی نہیں بولا, لیکن عقائد و نظریات کیسے تھے؟ بریلویوں والے تھے. بریلویوں والے تھے, ٹھیک ہو گیا. اچھا, چینجنگ کا بھائی؟ چینجنگ کبھی نہیں آئی. چینجنگ پہلے ہی تھی. کبھی پہلے ہم نے اپنے آپ کو بریلوی تو کہا ہی نہیں. نہیں, عقائد و نظریات بریلوی والے سے مراد یہ ہے کہ بھی آپ یہ عالی مدد بھی کہتے ہو گئے؟ نہیں, ہم نے یہ کبھی نہیں کہا. ہاں کہا تھا بچپن میں کہتے ہوتے تھے, پھر بعد میں درباروں پہ بھی جاتے ہو گئے؟ نہیں, وہ ہمارے ویسے ہی جاتے ہی نہیں تھے. ہمیں وہ کہتے تھے یہ دربار ویسے ہی ہوتے ہیں. یا شیخ عبد القادر جیلانی یا رسول اللہ مدد تو کہتے ہی ہو گئے نا یار. یا رسول اللہ مدد کہتے تھے, لیکن اتنا کوئی اوپنلی نہیں کہتے تھے. وہ نہیں کہتے, یہ بات یہ نہیں, بات یہ شرک ہے یا نہیں ہے, ٹھیک ہے, بات تو یہ ہو رہی ہے. ہاں, تو یہ کلیئر کب ہوئی چیز ہے, کیسے ہوئی کلیئر؟ تو میرا خیال ہے کہ یہی ایسا ایسا سوچ آئی, سمجھ آئی تو چیزیں کلیئر ہو گئی. سوچ سمجھ میں انجینئر صاحب کا بھی ہاتھ تھا, ان کی ویڈیوز کا بھی ہاتھ تھا. سوچ سمجھ میں ان کا بھی ہاتھ تھا. سوچ سمجھ میں میرا خیال ہے خود دماغ نے چیزیں سمجھنا شروع کی. ریسرچ کی. ہاں, ان کی ویڈیوز وغیرہ سے بھی اور ادھر ادھر سے بھی. باقی پھر پتہ چلتا کہ یار یہ چیزیں, کچھ چیزیں انسان کو تعلیم کے ساتھ ساتھ شعور آنا شروع ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ ایسے ہو ہی نہیں سکتا دربار. تو ہمارا شروع سے اتنا کوئی خاص کنسیپٹ نہیں تھا, تو پھر یہ اس طرح. صحیح. آج فرسٹ ٹائم آئے؟ جی, آج پہلے. کیسا تھا آج کا پروگرام؟ آج صحیح تھا. میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا شاید کوئی دین کی تبلیغ وغیرہ ہوگی, لیکن ان کا اپنا ایک پروگرام تھا, انہوں نے اس طریقے سے چلایا. میرا دوست جو میرے ساتھ آیا تھا وہ مجھے کہتا ہے کہ یار یہ تو ایک ہی ٹاپک پہ ڈسکشن ہو رہی ہے. تو یہ دین کی تبلیغ کا ذریعہ ہی ہوتا ہے نا. ایک سوال تھا, ایک اسپیشل کوسچن جو ہے, دیکھیں نا آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے نا. ہاں, نہیں, میں یہ جو باتیں کی یہ دین سے ہٹ کے تو نہیں کی, بات تو قرآن و سنت کے حوالے سے بات ہے. کوئی ٹاپک ہوگا کہ اس کے اوپر ایک لیکچر ہوگا. بہت سارے, اگر آپ نے ٹاپک دیکھنا ہے تو یوٹیوب پہ جا کے لکھے نا.
नहीं मैं आपसे इख्तलाफ नहीं कर रहा, मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर रहा। आपने पूछा कि आपको कैसा लगा तो मैं अपनी राय दे रहा हूँ। नहीं वो मैं बता रहा हूँ, आपने कहा ना दीन से हट के था, तो मैं बता रहा हूँ दीन से हट के नहीं कहा कि दीन से हट के था। मैं कह रहा था, मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं जाऊँगा तो वहाँ पे एक टॉपिक के ऊपर एक डिस्कशन होगी। मिसाल के तौर पे कुरान के ऊपर डिस्कशन होगी, मिसाल के ऊपर इबादत के ऊपर, नमाज के ऊपर डिस्कशन होगी। चलिए, अगर आप प्रोग्राम देखते हो तो आपको नजर आ जाएगा हमेशा से फॉर्मेट ऐसे ही होता है। पहले स्पेशल क्वेश्चन होता है, यानी उसको आप करंट अफेयर कह लें, जो मर्जी कह लें, उसके बाद क्वेश्चन होते हैं जो क्वेश्चन बड़े अच्छे थे, जो उसमें मुझे काफ़ी चीज़ें मिलने को मिली। स्पेशली एक जो उन्होंने बात हदीस की रोशनी होता है कि कब्र के ऊपर बैठना उसका बहुत गुनाह है, वो मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा सुनी है। मैं समझता था कब्रों जो ना जैसे जी वो देखा कितना खतरनाक अल्फाज थे। हाँ, तो अल्लाह अकबर, बहुत सारी चीज़ें जो पहली दफ़ा समझने को मिली। अच्छा, आप दोस्त किधर गया? दोस्त पहले शर्मा रहा था, तस्वीर नहीं बना रहा था। अच्छा। फिर कहता है मैंने आखिर में जाना है, तो फिर मैंने वो भाई साहब से रिक्वेस्ट किया कि ये आखिर में जाना चाहते तो इसको भेज दें तस्वीर बनाने के लिए। तो अभी अंदर गया हुआ है? आई थिंक ये हाँ अभी अंदर गया हुआ है। चलिए, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भैया। क्या नाम है भाईजान? रफ़ीउल्लाह भाई, किधर से आए? मियाँ वाली से। मियाँ वाली जी, खैरियत थी? कैसे आना हुआ? बस एक ख्वाहिश थी अली भाई से मिलने की। कितने दोस्त आए? हम 5 आए हैं। 5 दोस्त आए। कब आए? टाइमली पहुंच गए थे या लेट थे? तकरीबन 10 बजे पहुँचे हैं इधर। 10 बजे पहुँचे। इंजीनियर साहब का तारुफ कब हुआ, कैसे हुआ? नेगेटिव था, पॉजिटिव था, क्या था? स्टार्ट में तो नेगेटिव ही था। अच्छा। लेकिन जब उनके बारे में सुना तो हमने सोचा ये नेगेटिव है, इसमें कुछ ना कुछ है। तो हमने बाकी उनकी तफसीलन जितनी वीडियोस थी वो देखी हैं। तब हमें पता चला कि नेगेटिव नहीं क्यों कहते हैं, क्योंकि बाकी नेगेटिव है, इसलिए पॉजिटिव को नेगेटिव ही कहते हैं। अच्छा, ये जो भाई 5 दोस्त आए हैं, ये अलग अलग जो है इंजीनियर साहब को सुन रहे थे, किसी मुकाम पे इकट्ठे हुए दोस्त बन गए, या एक दूसरे को दावत देके? दावत देगी बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह। वो एक ने बात की है तो तफसीलन फिर हमने कहा कि यार वो दूसरी से तो ये कहते हैं इंजीनियर साहब तो ये गलत कहते हैं, तो फिर वो खुद ही ऑटोमेटिकली कहते हैं। क्योंकि उमूमन ऐसे होता है ना, 4-5 दोस्त होना, एक आधा इंजीनियर को सुन रहा होता है, वो क्या खिलाफ भी होते हैं। मोस्टली खिलाफ, हम तकरीबन चारों खिलाफ से, क्योंकि हमें पता नहीं था, हमने सुना नहीं था। लेकिन जब सुना है तो वो वाकई हम कहते कि नहीं आप ठीक हो। जबरदस्त, बड़ापन भी है ना जी। जी बिल्कुल, मान लेना सच्चाई देख के, तो ये भी बड़ी बात है। जी बिल्कुल। अच्छा, कौन सी वो बातें थी जो क्लियर हुई और आपको क्लियर हो गया कि यार ये तो बंदा ठीक है? आपकी लाइफ में जो चेंज आया वो क्या था? मोस्टली इनके 3 ही वर्ड्स हैं, जो 3 इनके हैं जुमले, कि बाबों का खुदा और है, किताबों का खुदा और है, और दूसरा मेरे नबी सा है ही कोई नहीं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह यही बातें देख के इनको कंफर्म करके हमने ये उनका जाना है कि वाकई वो ठीक कहते हैं। ज़बरदस्त। आज आप फर्स्ट टाइम आए, लाइव फर्स्ट टाइम देखा? जी लाइव बिल्कुल फर्स्ट। कैसा रहा प्रोग्राम आज का? आज अपनी आंखों से क्या देखा? मोस्टली हम जब एंटर हुए वहाँ से तो हमने उनको देखा तो खुशी थी बहुत ज़्यादा, और यकीन माने कि हमारी हार्ट बीट तेज़ हो गई थी। एक इंतहा की खुशी थी। जब अभी जाके उनको हाथ मिलाया तो और भी खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। जो आपको वीडियोस में नज़र आए हैं वो ऐसे ही हैं या बनावटी इंसान है? वीडियो में हमें इतने प्यारे नज़र नहीं आए। यहाँ ज़्यादा प्यारे? जी, यहाँ पे बहुत प्यारे लग रहे हैं। सही है, चलो बहुत शुक्रिया भैया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम भैया। जी, क्या नाम है भैया आपका? सॉरी, अनस रेहान। अनस भाई, आपका भैया? हारून इकबाल। मोहम्मद ज़ुबैर शाह। और ये भाई आप तो आगे बात कर रहे हैं, अब सब मियाँ वाली से हैं? जी, हम सब मियाँ। अच्छा, कैसे तारुफ हुआ इंजीनियर साहब का? किसने तारुफ करवाया? शाह जी तो हम इनको तो पहचानते हैं, ये तो हमारी अकेडमी के माशाल्लाह बड़े पुराने मेंबर हैं। इन्हीं की दावत से आप लोग? जी, इनसे पहले भी था वैसे तो। अच्छा। मेरे कज़न है तो उनको कोई 2016 से था, तो उनके थ्रू ही हुआ था हमें। पहले तो ज़ाहिर है नेगेटिव ही हुआ था सब कुछ। तो पहले हमारी जो फैमिली वो है तो बैकग्राउंड वो अहले-हदीस ही है, ठीक है, कि उसमें है। तो उसके बाद 2019 से अब अली भाई को फारूक हो गया। ठीक होगा। शाह जी आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह सेशन ठीक है? अल्लाह पाक के करम। बड़े दिनों बाद आए शाह जी? बस बहुत दिल करता है, लेकिन कुछ आपको पता है एक्सीडेंट वगैरह हुआ था भाई का, उस सिलसिले में थोड़ा सा डिले हो गया था। ईद पे आना ही था लेकिन नहीं आ सके। और आप कैसे हैं? माशाल्लाह, आपको देख कर दिली खुशी होती है और अल्लाह पाक आपको इस्तिकामत दें, इसी तरह चलते रहें। और इंजीनियर साहब, मैं बता रहा था कि मियाँ वाली में इस वक्त माशाल्लाह फैमिलीज एक जी ऐसे ही चेंज आ रही है, बताते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, लोग आके बता रहे हैं। और ये बहुत ही मतलब पॉजिटिव है और इस्लाम की तरफ। यानी कल ऐसा भी था कि हम मस्जिद वालों से इस बात पर लड़े हैं कि आप छठा खलीफा क्यों लिख रहे हैं, ठीक है ना? ये इस बिदअत हसना कब से शुरू किया आपने? अच्छा, ये किसने लिख दिया?
जनाब 2 मस्जिदें हमारी ऐसी हैं जहाँ पे 6 खलीफा लिखे जाते हैं। अल्लाह अकबर। अच्छा, हाँ जी। वो बरेलवी मसलक थे? नहीं सर, देवबंद थे। हाँ अच्छा 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 अच्छा। और उनसे इस मामले में काफ़ी डिस्कशन हुई है और उनसे कहा है कि जनाब ये आप वो गिरोह तैयार कर रहे हैं जो जिसने इमाम मेहदी के साथ जंग करनी है, मुसलमानों का एक गिरोह, इसकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशारत दे गए। बहरहाल अल्लाह पाक उनके अभी तक तो उन्होंने वो तख्तियाँ नहीं लगाई, रोक दी हैं। बड़ी बात है। चलो जी, ठीक हो गया शाह जी। आगे सलाम वालेकुम। क्या नाम भैया? अदील नाम है। अदील भाई किधर से आए? मैं दीना से आया हूँ, बेसिकली जेहलम का फर्स्ट टाइम आया हूँ। फर्स्ट टाइम आए? दीना से? दीना से। अकेले आए? नहीं, भाई आया साथ में। कैसे तारुफ हुआ, कैसे आना कैसे हुआ? आना ऐसे हुआ, तारुफ तो बहुत नेगेटिव हुआ। अच्छा। क्योंकि मेरा छोटा भाई था, वो फॉलो करता था। तो एक दिन जुम्मे की नमाज़ पढ़ रहा था तो रफ़लदैन से तो एक दो ना गिले आए मुझे मोहल्ले वालों से, यो तुम अभी हो गए हो। अच्छा। मैंने कहा क्या हुआ है? इस तरह तेरा भाई नमाज़ पढ़ता है। मैं घर आया, अम्मी अब्बू को कहा, मैंने कहा ये इस तरह इन आँखों में छड्डे ये ने ड्रामेबाजी लाई है तो ये तो वो, क्योंकि मैंने सुना नहीं था। मैं उस टाइम जारी बात है, दीन पे इंटरेस्ट ही नहीं था, कुछ भी नहीं था यार। फिर जब इसको मैंने बोला, प्रेशराइज किया, तो ये ना प्रेशराइज, जारी बात है छोटा भी था। कितना छोटा? मतलब है कोई 5-6 साल छोटा। अच्छा, आप फिर तो छोटा हुआ ना। तो इसने ना छोड़ दिया नॉर्मल ना, जो पहले सुन्नी वही, ठीक है, उस तरह नमाज पढ़ने लग गए। तो फिर मैंने रिसर्च की, तो फिर मैं ऐसा ऐसा फिर मैं इससे पूछने लग गया, ये ऐसे होता है? अच्छा, पूछा आपने? हाँ, फिर से मुझे बताया, फिर ऐसा ऐसा ऐसा, फिर मैं अपने अम्मी अब्बू को बताने लग गया। अल्लाह जन्नत नसीब करे। अम्मी मेरी देखती थी, मैं बाकायदा वीडियोस दिखाता था इनकी। तो बस ऐसा ऐसा तकरीबन साल हुए और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी वीडियोस देख के तो नमाज की और ज़्यादा पाबंदी। और दोस्त, हालांकि दूसरे दोस्त भी देखते हैं ना मुझे, तो वो भी पूछते हैं। तो ऐसा ऐसा ये भी है कि दिन का काम भी फैला रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मिल के भी बहुत खुशी हुई। फर्स्ट टाइम ही आए हैं और इंशाल्लाह ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम ही होगा। बाकी आगे दूसरों को दावत देनी है इंशाल्लाह। भाई को देख के फिर आपके अंदर वो तड़प है कि मैं भी जरा रिसर्च करूं कि हक का रास्ता क्या है। वरना उससे पहले मुझे कुछ नहीं पता था। ये भी इनका एक दोस्त थे जो यहाँ पे है इंतजामिया के, तो बेसिकली जेलम के ये इधर होता है शॉप पे, तो उनसे इन्होंने किया, तो मैंने फिर इनसे देख के फिर इनसे पूछा भाई से अपने छोटे से। अच्छा, जब आपने शुरू किया तो फिर तो नहीं किसी ने कहा क्या कि आप भी हो गए हो? फिर तो बड़ा भाई आ गए ना, आ गए। तो फिर मैंने अम्मी अब्बू को भी समझाया, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी समझ गए कि क्या हक है और क्या नहीं। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा घर। आज आप फर्स्ट टाइम आए? आज फर्स्ट टाइम। अंजीर साहब को यानी लाइव फर्स्ट टाइम देखा? फर्स्ट टाइम देखा। कैसा था? बहुत अच्छा लगा, बहुत वीडियोस में देखना और सामने बैठ के देखना बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त। ठीक हो गया, चल बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह।